Hello students, here is the new video. This is a lecture 9th. Today we are going to learn new concept Zener diode. Zener diode, ठीक है? But this Zener diode is called special purpose Zener diode. Special purpose diode. Why this is called special purpose diode? Because this diode is used as a voltage regulator. This is used as a voltage regulator. चलो पहला ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ Zener diode ਨੂੰ special purpose diode क्यों किया है ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया voltage regulator ਦੇ तौर ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ बट इन द previous videos मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ PN junction diode ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ one is forward biased and other one is reverse biased ਜਿਹੜਾ reverse biased ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ little bit current flow ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ due to the minority carriers है ना और ਇੱਕੋਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ वो ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋਦਮ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਰੰਟ ਬਿਕਮਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस one is Zener effect and another one is avalanche effect पहला इन्हां दोनों नूं समझांगे फिर आपां ये समझांगे भी Zener diode नूं एज अ वोल्टेज रेगूलेटर किस तरह यूज़ किया जाता ओके बेटा तो ये वीडियो तुहाडे लई स्पैशल होने वाली है तो प्लीज़ इनू तुसीं एंड तक वेखना है ओके बेटा चलो देखो आपां नूं ये तो पता है भी रिवर्स बायस दे विच ड्यू टू मिनोरिटी कैरियर्स लिटल बिट करंट प्रोड्यूस होंदा सीगा है ना करंट कॉन्सटेंट रह जाता हुंदा सी ते उस तो बाद माइक्रो दे विच अपने कोल मिले दे विच करंट मिलदा सी पहला माइक्रो दे विच मिलदा सी तां हुण आपां इह देखदे हां भी इहदे विच इक्कोदम इन्ना शार्प करंट क्यों आ जांदा हुंदा सी है ना इक्कोदम इनक्रीज़ हो जांदा हुंदा सी करंट क्यों हुंदा तां इह आपां रीज़न पढ़ना इहदे दो रीज़नस ने वन इज़ Zener इफेक्ट एंड अदर वन इज़ avalanche इफेक्ट ओके बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ वीडियो इंटरस्टिंग होगी ਤੁਹਾਨੂੰ समझोगे भी किस तरह इनक्रीज़ ਹੁੰਦਾ ਸੀ क्योंकि मैंने लास्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ भी ਇਹਦਾ मैं रीज़न ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗੀ ठीक है ਇਹਦਾ रीज़न मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ प्लीज़ इस वीडियो ਨੂੰ एंड तक ਵੇਖਿਓ ठीक है ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਫੈਕਟ ਨੇ Zener ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ avalanche ਇਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕੋਦਮ ਰਿਵਰਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ठीक है प्रोसैस दोनों दे विच सेम है भी किमें आपां देखा भी करंट किमें इनक्रीज़ होंदा ठीक है देखो पहला हैगा Zener इफेक्ट दे विच की करदे हां आपां इंप्योरिटी मोर लै लैंदे हां इंप्योरिटी मोर मतलब कि अपने कोल PN जंक्शन डायोड हुंदा सी P दे विच की हुंदा सीगा अपने कोल होल्स मेजॉरिटी हुंदी सी एंड मिनोरिटी कैरियर्स इलैक्ट्रॉन्स एंड एन साइड वाली साइड की हुंदा सीगा इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुंदे सी एंड होल्स ज़्यादा हुंदे घट हुंदे सी तो हुण आपां की करांगे जिहड़ी दोनों इंप्योरिटीज़ नेगियां है ना पी दे विच होल्स एंड एन दे विच इलैक्ट्रॉन्स ये आपां ज़्यादा लै लांगे जदों ये ज़्यादा लवांगे दैन इहदे नाल की होऊगा वी विल टेक मोर इंप्योरिटी इन केस ऑफ Zener इफेक्ट आपां ने ज़्यादा इंप्योरिटी ला ली उधर वाली साइड इलैक्ट्रॉन ज़्यादा ले ले पी वाली साइड एंड एन वाली साइड आपां ने होल्स ज़्यादा ले ली ठीक है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੋਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਹੋਲਸ ਐਂਡ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਊ ਰਿਵਰਸ ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ P ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ N ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ
दैन मैंने की किया पी वाली साइड ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ ਐਂਡ ਇੱਧਰ मैंने की ਵਧਾਇਆ मैंने ਹੋਲਸ ਵਧਾਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲਸ ਵਧਾਏ ਤਾਂ मैंने ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ दैन मैंने की किया जे इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ मैं 2 वोल्टेज भी दिनी है मतलब आ रिवर्स वोल्टेज मैं 2 भी दिनी हाँ दैन मेरे को की हुंदा गा करंट मोर एंड मोर इनक्रीज हो जाता किवें हुंदा देखो मान लो मेरे को डिप्लीशन रीजन शॉर्ट होगी कितनी होगी 200 एंगस्ट्रॉन होगी ठीक है वोल्टेज मैंने सिर्फ कितनी दी है 2 वोल्टेज दी है जो 2 वोल्टेज दी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई डी तुहानूं पता ना V इज इक्वल टू ई डी दैन ई इलैक्ट्रिक फील्ड कट लिया V अपॉन डी V कितना अपने को 2 एंड डिप्लीशन रीजन कितना है 200 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन नूं मीटर्स दे विच चेंज कर लिया दैन मेरे को इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई 10⁻6 देयर इज अ मोर इलैक्ट्रिक फील्ड मतलब ड्यू टू द शॉर्टेंड डिप्लीशन रीजन इलैक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाई जो इलैक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाई हो गया दैन वो इलैक्ट्रिक फील्ड की करूँगा फोर्स क्रिएट करूँगा इलैक्ट्रिक फील्ड की क्रिएट करूँगा फोर्स क्रिएट करूँगा जो फोर्स क्रिएट करूँगा दैन वो की होगा इलैक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स क्रिएट करूँगा तो कोवलेंट बॉन्ड्स नूं फटाफट की करन लग जूगा तोड़न लग जू जेडे उन्हां दे विच कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए इलैक्ट्रॉन एंड होल्स उन्हां दे विच की करन लग जूगा बॉन्ड्स नूं तोड़ना स्टार्ट कर दूँ जो बॉन्ड्स नूं तोड़ना स्टार्ट करता तो की होगा मोर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एंड होल्स एक दूजे वाल जान लग जाएंगे मतलब इलैक्ट्रॉन्स इधर नूं जान लग जाएंगे जो इलैक्ट्रॉन जान लग जाएंगे दैन मोर एंड मोर करंट इनक्रीजिज किहदे करके करंट इनक्रीज होया जो मेरे को जिहड़े चार्ज कैरियर्स सीगे वो इनक्रीज हो गए चार्ज कैरियर्स मतलब इंप्योरिटी इंक्रीज करती इलैक्ट्रिक फील्ड हाई हो गया ड्यू टू द शॉर्टेंड डिप्लीशन रीजन जो शॉर्टेंड हो गया मेरे को की हो गए कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए इलैक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों फ्री हो गए दैन इलैक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स द होल्स जो होल मूव करन लग गए दैन मेरे को की होया उत्थे करंट इनक्रीज हो गया करंट इनक्रीज किहदे करके होया ड्यू टू द चार्ज कैरियर्स करंट की इंक्रीमेंट होगी ड्यू टू द चार्ज कैरियर्स ठीक है तो हम तुसी इस फॉर्मूले तो भी देख सकते हो जोड़ा अपने करंट इलैक्ट्रिसिटी के चैप्टर के विच कीता होयागा I इज इक्वल टू NaEVD किता होया ना रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट दैन जो मतलब इलैक्ट्रॉन एंड होल्स फ्री हो गए कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया दैन वो मूव करन लग जाएंगे एक दूजे के वाल मूव करन लग जाएंगे जो मूव करनगे चार्ज कैरियर्स वध गए चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट वध गई दैन करंट भी ऑब्वियस आ वधूगा ही वधूगा तो जो करंट वध गया तो तुसी याद रखना जो मेरे को वोल्टेज मतलब 4 वोल्टेज तो घट होगी 4 वोल्टेज तो मेरे को वोल्टेज घट होगी मतलब 2 3 3.9 तो मेरे को ब्रेकडाउन हो गया दैन मैं उत्थे समझूंगी भी जिनर इफैक्ट हो गया जिनर इफैक्ट किहदे करके होया उत्थे वध तो वध करंट प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स क्लीयर होया तो जिनर इफैक्ट तुसी याद रखना है भी जे आपां वोल्टेज लैस दैन 4 वोल्टेज दे रहे हैं अपने को इफैक्ट आ रहा 2 वोल्टेज से 3.9 वोल्टेज से 3 ते आ रहा दैन उत्थे तुसी समझोगे भी की है जिनर इफैक्ट है आई होप यू विल अंडरस्टैंड फुली जिनर इफैक्ट दे विच तुसी सिंपल की करना है इंप्योरिटीज़ नूं वधाना है इंप्योरिटीज़ नूं वधाओगे दैन अपने कोल की होगा डिप्लीशन रीजन शॉर्ट हो जूगी डिप्लीशन रीजन शॉर्ट होने नाल इलैक्ट्रिक फील्ड वध जूगा इलैक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्रिएट करूगा फोर्स क्रिएट करन दे नाल की होगा अपने को कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स हो जाएंगे उहदे नाल इलैक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों फ्री हो जाएंगे इलैक्ट्रॉन होल्स फ्री हो गए चार्ज कैरियर्स फ्री हो गए इहदे नाल की होगा करंट इनक्रीज हो जूगा जो अपने को ब्रेकडाउन क्योंकि आप की कर रहे हैं कि रिवर्स मोड के विच ही कर रहे हैं दोनों आही चीज़ पढ़ रहे हैं ब्रेकडाउन तो होना जरूरी है जो ब्रेकडाउन लैस दैन 4 वोल्टेज से हो रहा दैन तुम समझोगे उत्थे की हो गया जिनर इफैक्ट है जिदे करके करंट की हो गया इनक्रीज हुण इहदे नाल ही आपां समझते हैं एवलांचे इफैक्ट की हुंदा देखो एवलांचे इफैक्ट इहदे विच की करांगे लैस इंप्योरिटी ऐड करांगे उहदे विच मोर इंप्योरिटी ऐड कीती इहदे विच लैस जो लैस इंप्योरिटी ऐड की तो तुसीं की करोगे जिहड़ी मेरी आह वाली डिप्लीशन रीजन है ये ज़्यादा हो जूगी
ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਹੋਲਸ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਘੱਟ ਮੈਨੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧਾਇਆ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 6 ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਵਧਾਤਾ, 2 ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ मतलब ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਨਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧਾਤਾ 6 ਵੋਲਟੇਜ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਲਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਲਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ, ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਵੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੋਵਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों, क्योंकि अपन पता भी करंट किदे करके इंक्रीज होना, ड्यू टू द चार्ज कैरियर। जो चार्ज कैरियर्स फ्री ने दैन वो की प्रोड्यूस करनगे, करंट नू प्रोड्यूस करनगे, मतलब करंट नू इंक्रीज करनगे ड्यू टू दिस फॉर्मूला। समझ आ गया। तो ये तुसीं की करना, लैस इंप्योरिटी रख के वोल्टेज नू वधाना। वोल्टेज नू वधाओगे तो हुण तुसीं याद रखियो, जदों ग्रेटर दैन 6 वोल्टेज से अपने कोल ब्रेकडाउन होगा इन द रिवर्स मोड दैन उत्थे की होगा, एवलांचे इफेक्ट होगा। जे तो लैस दैन 4 वोल्टेज आ दैन अपने कोल की आ, जीनर इफेक्ट। जे ग्रेटर दैन 6 वोल्टेज आ जां 6 वोल्टेज से आ दैन अपने कोल एवलांचे इफेक्ट। जे 4 एंड 6 के बिटवीन आ दैन दोनों इफेक्ट देखने को मिलने, जीनर भी एंड एवलांचे भी। क्लीयर होया, समझ आया। क्योंकि अपने कोल इंप्योरिटी लैस सी दैन अपने इलैक्ट्रिक फील्ड मतलब मोर करना सी एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज, मतलब 6 वोल्टेज से अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड हाई हो गया, इलैक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो गए ड्यू टू दिस फॉर्मूला। एनर्जेटिक होए दैन एक इलैक्ट्रॉन भी जे होल वाल चला गया दैन उन्हें कोवलेंट बॉन्ड नू ब्रेक करता ड्यू टू एसलरेशन, बॉन्ड नू ब्रेक करता, इलैक्ट्रॉन फ्री हो गए दैन उहदे नाल की होया, जेड़े अपने कोल करंट आ इनक्रीज हो गया। जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स वध गए दैन अपने कोल की होया, करंट इनक्रीज हो गया। समझ आ गया, दोनों इफेक्ट समझ आ गए। तो इन्ना करके अपने कोल जिहड़ा है करंट पहला कॉन्सटेंट रहिंदा रिवर्स मोड दे विच, मिली दे विच इस करके आंदा ड्यू टू द जीनर इफेक्ट, ड्यू टू द एवलांचे इफेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट आ, तो इनू चंगी तरह ध्यान नाल कर लो। ओके बेटा, मैंने थ्योरी भी लिखी हुई आ, तुसीं यही थ्योरी लिख सकते हो। हुण आपां इंपॉर्टेंट करते हैं, नाउ वी विल स्टडी द जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। हुण देखो ये तुहानूं नाम तो ही पता लगता हो, जिहड़ी जीनर डायोड आ ये भी रिवर्स मोड दे विच ही काम करती आ, ब्रेकडाउन रीजन दे विच ही काम करती है एंड ये की करती है, वोल्टेज नू रेगूलेट करती है, वोल्टेज नू रेगूलेट करती है। क्योंकि अपन पता है अपने घरों दे विच 220 वोल्टेज आती है 50 हार्ट्स दे नाल, दैन की हुंदा है वो वोल्टेज आई नहीं। हुण किसी सप्लाई नू घट वोल्टेज चाहिए, किसी नू ज़्यादा चाहिए है ना, दैन वो इररेगुलर वोल्टेज हुंदी आ। इररेगुलर वोल्टेज दे नू रेगूलेट कौन करता है, वोल्टेज रेगूलेटर, मतलब जीनर डायोड उन्होंने की करती हैगी, रेगूलेट करती है। वो समझते हैं किस तरह, आ देखो की हैगा इहदा परपस की है, वोल्टेज नू रेगूलेट करना। इहदा परपस सिंपल की है, वोल्टेज नू रेगूलेट करना। क्योंकि इनपुट अपने को जिहड़ी वोल्टेज हुंदी है AC वोल्टेज वो इररेगुलर हुंदी है, उन्होंने यह रेगूलर करती है। किवें देखो, आ अपने को इनपुट AC सोर्स है, इनपुट AC सोर्सिस आ अपने को सिंबल है, तुसीं सिंबल याद रखना। इहदा सिंबल इस तरह Z, आ वाली जीनर डायोड Z आ तुसीं याद रखियो, ए दा सिंबल है एवें, ठीक है जी। आ इहदा सिंबल है सिंपल जीनर डायोड दा, आ मैंने बनाया होया, आ उहदा नैगेटिव मोड है, आ उहदा पॉजिटिव मोड है, ठीक है बेटा, ध्यान नाल समझ लो। आ अपने को इनपुट AC सोर्स है जिथों इररेगुलर वोल्टेज आनी है। आ मैंने रजिस्टेंस लगाई हुई है जिथे वोल्टेज ड्रॉप हो, मैं तुहानूं दस दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दसूँगी कि मैं वोल्टेज ड्रॉप होंदा है। एंड थ्रू लोड रजिस्टेंस अपने को आनी है आउटपुट, तो आप समझ ही चुके हैं, लोड रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही की होगा अपने को आउटपुट आनी है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जीनर डायोड टू सप्लाई कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज इररिस्पेक्ट ऑफ वेरिएशन इन
इनपुट वोल्टेज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब आप इधरों वेरीएशन करांगे, मतलब इररेगुलर वोल्टेज देवांगे, दैन थ्रू जिन्ना डायोड अपने कोल की आऊगा वोल्टेज रेगूलेट करके आऊगी। क्योंकि रैक्टीफायर दे विच अपने ये चीज़ पढ़ी सी, एक डायरैक्शन तो बनाती सी। इन द फुल हाफ वेव दे विच की हो रहा सी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस सी, एंड फुल वेव दे विच अपने एक डायरैक्शन तो बनाती सी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। बट ये जरूरी तो नहीं भी हो, जे आप 10 वोल्टेज देने तो सारी 10 नहीं, किते 10 हो जाती सी, किते 11, किसे 0, दैन उन्होंने वोल्टेज को रैगूलेट करने के लिए अपने अलग तो बनाया वोल्टेज रैगूलेटर, मतलब जिन्ना डायोड को बनाया जी वोल्टेज रैगूलेटर की तरह काम करती सी। क्योंकि रैक्टीफायर के अपने एक डायरैक्शन पढ़ी सी, यूनि डायरैक्शन मतलब कि पॉजिटिव। हुण आपां उहदी कॉन्सटेंट वोल्टेज को भी पढ़ांगे भी किस तरह रैगूलर वोल्टेज आप कर सकते हैं थ्रू जिन्ना डायोड। ओके बेटा, देखो देखो दिस डिवाइस कैन रेगूलेट द वोल्टेज एज वी हैव डिस्कस्ड इन करंट इलैक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखो आप करंट इलैक्ट्रिसिटी चैप्टर के आ फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, V इज इक्वल टू E माइनस IR। V इज अ टर्मिनल वोल्टेज, कॉन्स्टेंट वोल्टेज। V इज अ टर्मिनल, टर्मिनल मीनस होंदा कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिलनी। E इज अ EMF, I इज अ करंट, R इज अ रेजिस्टेंस। ओके, देखो थ्रू दिस फॉर्मूला आप वोल्टेज को किमें कॉन्स्टेंट करते हैं, क्योंकि वोल्टेज रैगूलेटर पढ़ना तो तुम्हें यह मैकेनिज्म समझना पऊगा। जो मैकेनिज्म समझ गए ना, दैन तो तुम थ्योरी खुद तो ही लिख सकते हो। देखो किमें, मान लो अपने को जी EMF वो 200 है। ओके बेटा, जी अपने को करंट है वो 10 है, करंट के विच वेरीएशन आप करांगे, बट जी रजिस्टेंस है वो 10 ओम लै ली रैगूलेट अपने, मतलब कॉन्स्टेंट ला ली। देखो अपने टर्मिनल वोल्टेज 100 रखनी है, EMF 200, करंट अपने 10 किया तो आप ही अपने 10 किया, 10 इंटू 10 100 हो गया, 200 के विच घटाया दैन अपने को 100, अपने टर्मिनल मतलब कॉन्स्टेंट रखनी है। फिर मैंने EMF को बढ़ाता 300 ते, एंड करंट बढ़ाता 20, रजिस्टेंस मैंने सेम रखी 10, 300 माइनस 200 कितना आ गया 100। फिर मैंने वोल्टेज को घटाता 150 ते करता, करंट भी घटाता 5 इंटू 10 कितना आ गया फिर तो 100। फिर मैंने वोल्टेज को थोड़ा जहा बढ़ाता 250 ते, 5 इंटू 10 की आ गया अपने को 100, फिर तो आ गया। मतलब आ जी वोल्टेज है इररेगुलर वोल्टेज जी आप देवांगे वेरीएशन इनपुट करांगे, एंड आ जी वोल्टेज आ ये वोल्टेज रैगूलेटर के थ्रू आपको आऊगी, जिन्ना डायोड के थ्रू आऊगी रैगूलेट हो गए कॉन्स्टेंट हो गए। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप आ जिदे करके होंदा सीरीज रजिस्टेंस करके, सीरीज रजिस्टेंस लगाई है ना मैंने, आ देखो सीरीज रजिस्टेंस लगाई हुई है, ये करके वोल्टेज ड्रॉप होना ताकि आपको जिन्ना डायोड के थ्रू रैगूलर वोल्टेज मिले। ओके बेटा, देखो मैंने की किया पहला 200 किया, 200 तो 100 बनाता, 100 इंक्रीज करता, 100 का ही मेरे को वोल्टेज ड्रॉप होया। फिर मैंने 200 तो 50 घटाता 150, तो 50 का ही मेरे को वोल्टेज, मतलब जिन्नी वोल्टेज मैं घटाऊँगी बढ़ाऊँगी उन्नी ही मेरे को वोल्टेज ड्रॉप होना। वो वोल्टेज ड्रॉप किदे करके होना कि कौन करूँगा, सीरीज रजिस्टेंस। ठीक है, मान लो मैंने 200 दिता, इनपुट के 200 दिता, मैं चाहनी हाँ भी मेरे को आउटपुट के 100 आए, तो की होगा ये सीरीज रजिस्टेंस के थ्रू मेरे को की होगा 100 वोल्टेज का की हो जाऊगा ड्रॉप हो जाऊगा, एंड ये थ्रू अपने को की आ जानी है जी मेरे को आउटपुट आऊगी वो मेरे को कितनी आ जानी है 100 आ जानी है। इस तरह मेरे को वोल्टेज की होंगे ड्रॉप। हुण मैंने दिता 300 दिता, दैन मेरे को की हो जाना इत्थे दोबारा तो मेरे को की हो जाऊगा इत्थे 200 का ड्रॉप हो जाना, दैन मेरे को 100 की आ जानी है। ठीक है, तो जिन्ना डायोड मान लो मेरे को की है एक कॉन्स्टेंट, वैसे मार्केट के सारियां अवेलेबल ने भी जिन्नी तुसीं कॉन्स्टेंट रखनी चाहते हो वोल्टेज, जिमें 10 वोल्टेज 6 वोल्टेज दियाँ भी आंदियां ने, 10 वोल्टेज दी आंदे ने, 15 जिन्ना डायोड तुसीं कॉन्स्टेंट रखना चाहते हो, जिन्नी वोल्टेज तुसीं रैगूलेट रखनी चाहते हो उन्नी का तुसीं जिन्ना डायोड लगा दो, दैन उन्ने तुहाडे कोल आउटपुट आऊगी। ये रैगूलर वोल्टेज आंदियां ने, जिन्नर वोल्टेज आंदियां ने। ओके बेटा, तो जे मैं करंट में इनक्रीज करूँगी वोल्टेज में इनक्रीज करूँगी इनपुट से इररेगूलर, दैन अप टू 100 भी इनक्रीज करदा, दैन वोल्टेज ड्रॉप तो होना ही है। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैन मेरे को कॉन्स्टेंट वोल्टेज आन लग जूगी। मतलब यदा कनक्लूजन की है जिन्ना डायोड का कनक्लूजन ये आ भी एवरी टाइम अपन वोल्टेज की मिलूगी कॉन्स्टेंट मिलूगी। समझ आ गई, क्लीयर होया? तो ये सारी ये कनक्लूजन सी जिन्ना डायोड की जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, तो इनू प्लीज़ मिस ना करो। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो जरूर एंड तक वेखो। तो देखो जो लैस दैन 4 वोल्टेज तो जिन्ना ब्रेकडाउन,
जे ब्रेकडाउन 4 to 6 है दोनों इफैक्ट। जे अपने को ग्रेटर दैन 6 वोल्टेज है दैन अपने को एवलांच इफैक्ट है। हुण मैंने तुहानूं एक ग्राफ दिखाना है, देखो आ वाला ग्राफ। जे मेरे को जिहड़ा वोल्टेज ड्रॉप आ वो 4 वोल्टेज ते ही हो गया दैन मैं कहूँगी वो जिनर ब्रेकडाउन। जे वो 6 वोल्टेज ते हो रहा है दैन मैं समझूंगी वो की है एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, ये इहदा ग्राफ है सिंपल। एक याद रखियो भी जिहड़े ये ब्रेकडाउन ने जिनर डायोड वर्क करती है इन द रिवर्स ब्रेकडाउन वर्क करती है, रिवर्स मोड दे विच वर्क करती है। ओके बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड फुली। अगर तुहानूं वीडियोज़ अच्छियां लग रही ने दैन तुसीं फुली अंडरस्टैंड कर रहे हो सारे टॉपिक्स नूं, दैन तुहानूं फिजिक्स इंटरस्टिंग लग रही है, प्लीज़ मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्सिया करो, विद जैस एंड नो ही दस दिया करो भी तुहानूं हाँ ये पूरी वीडियो अंडरस्टैंड होगी या नहीं होगी। क्योंकि जे नहीं हुई दैन फिर मैं थोड़ा अपने विच इंप्रूवमेंट करूँगी। ठीक है, इंप्रूवमेंट के थ्रू मैनू एवें हुंदा भी तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाए जो टॉपिक मैंने छेड़िया, दैन उहदा तुहानूं पूरा कनक्लूजन मिल जाए किस तरह उहदे विच प्रोसैस हुंदी है प्रैक्टिकली। तो मेरी यही हुंदी है कोशिश, यही हुंदी है भी वध तो वध तुहानूं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे के समझाया जाए। तो प्लीज़ जिहड़ी भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुंदी तो प्लीज़ मैनू कमेंट बॉक्स दे विच दस्सिया करो। जे तुसीं फुली अंडरस्टैंड कर जाते हो दैन उहदा भी मैनू यस एंड नो दे विच आंसर दिया करो, यस दे विच आंसर दिया करो, जिहदे नाल मैनू ये पता चल जाए हाँ भी मेरे वीडियोज़ दे नाल किसी नूं पूरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है बच्चों नूं। ओके बेटा, थैंक यू।